the Foundation Day ceremony of Aram Yoga Institute. It's very heartening to see all of you here today. And as we begin the program, as a ritual that all of us have learned, we'll begin with the three Omkar chanting. So please settle down, keep your back straight, eyes closed. शुरू करने से पहले आप सबके लिए चंद लाइनें कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं, अभी बाकी है, अभी बाकी है, बाद में तालियां बजाइएगा। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। अब बजाइए। A very good morning to all of you. A very warm welcome to this wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. उगते हुए सूरज की तरह आरंभ योग संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। So Aram Yoga Institute was founded in 2018 and today we are here to celebrate our 8th Foundation Day. So wishing you all a very happy Foundation Day. We'll begin with the lighting of lamp. So may I request Sushma ma'am, Vishnu sir, Rita ma'am, Sonali ma'am, Balkrishna sir, please come ahead for lighting the lamp. Arvind sir, please आइए. जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हम ईश्वर के नाम लेते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गणेश वंदना, सर्वप्रथम वंदना है श्री गणेश की, सर्वप्रथम वंदना है श्री गणेश की, क्योंकि उन्हीं की वजह से कृपा बरसती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तो गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट अश्विनी आचार्य मैम टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर गणेश वंदना। सिंधूरवर्ण करुणा सागर करिवदन लंबोदर
सकल विद्या आदि पूजित सर्वोत्तम ते नमो नमो लंबोदर लघुमिकरा अम्बासुत अमर विनुत लंबोदर लघुमिकरा लंबोदर लघुमिकरा लंबोदर लघुमिकरा. It's a special day, so we are going to listen some special reflection from our all adult teachers. I would request, it's my honor actually to call them. I would request Sonali ma'am, please come ahead and please share your reflections with us. Thank you. What to say about first I'll start with Sushma. Okay, I know Sushma since my as a student. She was my co-student for MA. She has always been very sincere, hardworking. You must have all seen her. Okay, as a student also she was always like this. I think she was the only one who attempted the NET in her first year of MA and also cleared it, if I'm not mistaken. Okay, and promoted all of us to do it later. So she's a perfect teacher, and I think the name of the institute what she's kept is perfect for her, because for herself also and for others, whatever you begin, Aram, okay, she will see to it that she does it and she makes you also do it, okay. So she takes it to completion. So you just have to begin it. That's it, okay, for her. And as a human being, Sushma is the, I think आप सबको पता रहेगा कि I don't think, मुझे ऐसा लगता है कि I don't know how can we manage that. I just don't know how can मैं नहीं पता कि वो कैसे करती है ये, कि वो ना बोले बिना भी बहुत कुछ ना बोल देती है कभी-कभी. Arvind is smiling from that. So I know these are few qualities I think मुझे नहीं पता वो कैसे उससे सीखे. बस मैं एक ही सीख पाई कि बस एग्जाम दो. And of course I can't forget she made me learn technology because जब भी she started classes for NET and YCB, I'm telling you I was a zero in making PPTs and Zoom, everything. And मैंने बोला भी सुषमा ये नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ाने को बोल तो ठीक है मैं पढ़ा भी लूँ, but ये PPT नहीं हो पाएगा. And believe me, she said नहीं सोनाली में हो जाएगा, आप कोशिश करो. And in her usual style, no? So you know it really today I can say yeah I can do not those special effects, but yeah I can make decent PPTs and conduct meetings. Like पहले meetings I remember काफी बार मैं सुषमा को ऐसे ऑफिसर फोन करती थी, अरे ये ओपन नहीं हो रहा है, अरे ये नहीं हो रहा है, literally. अभी she is at more peace I think, क्योंकि अभी मेरे फोन नहीं जाते हैं, so I'm able to log in comfortably with whatever she sends me and I can search for it. And as far as Aram goes, all of you as students know that it has grown with leaps and bounds. Whatever she puts, I mean, you know, when she started this also, we were there, and I've seen her grow like, I mean, Aram grow along with her. I think जो मतलब छोटा सा पौधा उसने लगाया था, आज वो काफी इतना बड़ा हो गया है कि I can see so many students like this PPYG batch when we started, we were expecting 5-6 students, and we are 15 students today. So I mean, I was really, and that too without any really no advertising, no marketing. So you know, she has that credibility which she has created, Aram has created, and a big congratulations for you, and hope you continue to grow. And few words for Arvind. I think he's her, you know what you can say, the base, the foundation which has kept her really rooted. Because where the roots are, the tree grows. So thank you very much, Arvind. वही से सब कुछ चलता है, बिकॉज देखो हम कितना भी दौड़े, इंजन तो डालना मतलब फ्यूल तो चाहिए ही ना, दौड़ने की तो शौक है, ठीक है. सो आई थिंक ऑल द बेस्ट एंड होप यू ग्रो मोर एंड
more day by day, and hopefully I'll attend your 25th foundation day also. Okay. Thank you very much for those words. Krishna sir to come next and say a few words. के इस स्थापना दिवस पर आप सभी का स्वागत है। और अगर वास्तव में आप देखेंगे तो आज का जो दिन है ये किस आवाज आ रही है? अगर वास्तव में आप देखें तो आज का दिन न किसी संस्थान का है, न किसी व्याख्यान का आप कह सकते हैं, ना किसी गुरु का है, ना किसी टीचर का है। आज का दिन आपका है। Because of you, because of any institute का student, institute grows. No doubt, institute works. इसका मतलब ये नहीं समझिए institute doesn't work. They work. But अगर उनको आगे ले जाना है तो उनमें उनके विद्यार्थियों का बहुत हाथ होता है। और आज का दिन जो है वो प्रतीक है। आपने जो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले जो आपने शांत विद्रोह किया होगा, चलो हाँ विद्रोह किया है, योग ज्वाइन करना विद्रोह से कम नहीं है। तो आप लोग ने जो विद्रोह किया कि चलो योगा सीखते हैं, वो विद्रोह ने धीरे धीरे रूप लिया एक जिम्मेदारी की तरफ। दैट इज योगा सीखने से लेके आप योगा सिखाने की तरफ चले गए। हम बहुतों को जानते हैं जो योगा सीखने आए थे और आज बेहतरीन शिक्षक हैं। सो यस, आप उस जिम्मेदारी की ओर गए। जब आप जिस दिन आपने योगा ज्वाइन किया था, पूरा वर्ल्ड भाग रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। उस मोमेंट में आपने डिसाइड किया था कि हमें शांत रहना है, हमें रुकना है, एंड देन यू ज्वाइन योगा। दैट मीन्स आप रुके और फिर अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि योग शिक्षक मतलब योगा सीखना क्या होता है, और मेरे दिमाग में उस समय कुछ आया नहीं, क्योंकि योग की इतनी परिभाषाएं हैं ना, शिव से जीव का मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, फिर पतंजलि जी आते हैं, ऑफकोर्स सुषमा जी आपको सिखाते हैं। और इस समय मेरे दिमाग में एक ही बात आया, योग शिक्षक बनना मतलब साइकिल चलाना सीखना है। आप देखिए, आप साइकिल चलाते हैं, सबसे पहले तो आपको एक पीछे आधार लगता है, कोई पकड़े साइकिल। यहाँ पे वो काम सुषमा जी ने किया है, आपकी साइकिल पकड़ी है। दूसरा जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि डर लगता है, आप भी बहुत डरे होंगे। तीसरा, आप लड़खड़ाते हैं, एग्जाम के 1 महीना पहले गिरते भी हैं, लेकिन लास्ट में आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। और जैसा सोनाली जी ने कहा, सुषमा जी मेक श्योर करते हैं कि आप गिरे, मैम घुटने में लगा है, कोई बात नहीं, आप चढ़ो साइकिल पे, तो चढ़ो, पार में खराब। So that योग सीखना मतलब इज लाइक अ साइकिल चलाना। और फिर जिस दिन आप हवा से बात करते हैं, संतुलन बनाते हैं, उस दिन आपको समझ में नहीं आता कि हवा आपसे बात कर रही है या आप हवा से बातें कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए। और उस दिन आपको रियलाइज होगा, शिक्षक बनना, जिस दिन आपने संतुलन बना लिया, शिक्षक बनना ये कोई उपलब्धि नहीं है, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। मार्क माय वर्ड, शिक्षक बनना is a responsibility. That day you will realize कि it's a big responsibility. Be a teacher. आप किसी भी कारण से योग में आए हो, आधी हुई हो आपको, व्याधि हुई हो आपको, आपका जीवन उलझा हो, मे भी सुलझा हो, और आपको मस्ती आई हो कि सब कुछ शांत चल रहा है, चलो कुछ एडवेंचर करते हैं, या सबसे कॉमन रीजन कि हमारे दोस्त ने ज्वाइन किया और बोला चल ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन कि हमारा दोस्त बोलता है और हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको ध्यान में आता है धीरे धीरे कि अरे योगा ज्वाइन कर लिया, फिर आप धीरे धीरे अपने अंदर उतरते जाते हैं और आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। आप टीचर बने, बहुत सारे लोग टीचर है, बहुत सारे बनने की राह पे, ये यात्रा ना बहुत मजेदार होती है। अभी आप इमेजिन करिए, आपके क्लास में कोई आता है, आपने भी सुषमा मैम को पूछा होगा कभी न कभी, मैडम सांस कहाँ से ले, पेट से या फेफड़े से? क्या होता है आपका? और जब आपको आपका विद्यार्थी ये प्रश्न पूछता है, तब अब आपके मन में तो
मतलब फुल कॉमेडी पिक्चर बन जाती होगी। बट कुछ लोग होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। दैट्स द सिंबल ऑफ टीचर। यू हैव टू बी सीरियस एट दैट टाइम, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन है। सांस कहाँ से ले, पहले तो दिमाग में यही आता होगा, अरे सांस ले भाई पहले, फेफड़े से ले, पेट से ले, मुंह से ले, नाक से ले, सांस लीजिए, देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। बहुत सारी बार बहुत सारे दुखी स्टूडेंट भी आप चेहरे पे जो माथे पे शिकन, आंख में आंसू, बहुत दुखी रहते हैं। उस समय भी आपके मन में आता होगा कि इतने सारे प्रॉप्स है, अभी ये रस्सी है, पीछे ब्लॉक्स है, मैट है, एक प्रॉप की कमी आपको महसूस होती होगी। पूछिए क्या टिश्यू पेपर। आप सोचते हो कि सुषमा जी ने यूं क्यों नहीं बताया कि टिश्यू पेपर भी रखना है। फिर आप उसे तुरंत ज्ञान देने लग जाते हैं, शवासन करो, शीर्षासन करो, फॉरवर्ड बेंडिंग करो। बट वास्तव में उसे क्या चाहिए होता है? वास्तव में उसे आसन नहीं, सर के लेक्चर्स जब आप अटेंड करो तो आपको लगता ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो। वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है कि हाँ सर बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो आज भी ना वो सब ऐसा फ्लैशबैक में आ रहा था कि सर की क्लास चल रही है और हम लोग सुन रहे हैं। तो सच में सर थैंक यू सो मच। May I request Rita ma'am to please come on stage and say a few words? बट मैं बताऊंगी कि मैं क्यों रुकी आरंभ योगा में। तो ये तीनों जो टीचर थे, ये मेरे सीनियर थे, मैं इनसे कभी नहीं मिली थी। बालकृष्ण सर ने एक बार बोला कि सुषमा मेरी फ्रेंड है जिसके इंस्टीट्यूट में एक टीचर चाहिए और गो एंड टीच एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं जाती हूँ। मैं पहले दिन गई, सुषमा जी से मिली, वो मेरी क्लास में बैठे और मैंने शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बोला था एक लेक्चर में ख़त्म कर देना। तो मैंने बोला ठीक है, पर शाम को मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने बोला इतना कुछ एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, टेक योर टाइम एंड जितने लेक्चर लगेंगे ख़त्म कर देना। तो बोला ठीक है। तो 2 और 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो गया मेरा क्लास। लाइक लेवल 1-2 को मैंने पढ़ाया था, पूर्वा, स्मिता, ये लोग थे क्लास में। एंड देन मैं खुद भी स्टूडेंट थी और यहाँ पे भी पढ़ाती थी। एंड देन धीरे धीरे आरंभ योगा इंस्टीट्यूट ग्रो करने लगा एंड आई वॉज देयर विद देम थ्रू आउट द जर्नी। फिर मैं परमानेंटली उनकी एनाटॉमी टीचर बन गई। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोगों ने मतलब ऑफर किया कि हमारे साथ आ जाओ। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे इस इंस्टीट्यूट से जोड़ के रखा, वो ये था कि आप लोगों को एज अ स्टूडेंट शायद ना पता हो, बट सिंस आई नो हर पर्सनली, सुषमा जी हमेशा बोलते हैं एक टॉपिक को 2 लेक्चर लगे, 3 लेक्चर लगे, 4 लेक्चर लगे, टेक इट, यू नो, मेक श्योर दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। भागने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे उन्हें नॉलेज देने के लिए। सो वो चीज़ जो थी, लाइक द थॉट बिहाइंड टीचिंग, द थॉट बिहाइंड रनिंग द कोर्स, इट्स नॉट दैट। आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत प्लेसेस पे 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने में भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे आप शुरू करके और ख़त्म ही नहीं होता है ना। मैम 8 महीने हुए, एग्जाम कब दे, और हम बोलते कोई बात नहीं, करो, पढ़ते रहो, आओ कोई बात नहीं, हम पढ़ाते रहेंगे। तो मतलब जो थॉट है, ये नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे कोर्सेज रन करने या बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए, थॉट वो नहीं है। वो ये है कि यहाँ जो भी आए वो 110% नॉलेज लेकर जाए, नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस एंड नथिंग एल्स। सो द रीज़न एंड इंटेंशन बहुत ही प्योर है एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम हियर। एंड अदर देन दैट, जैसे सोनाली मैम और सर ने बोला कि बेस्ट चीज़ ये भी है कि हम ऐसे इसलिए क्योंकि आप लोग वैसे हो। मतलब किसी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं लगता कि वो बस आया है और सोचे कब 6 महीने हो जाए, कब 2 घंटे हो जाए, नहीं। तो हर एक स्टूडेंट इतना सिंसियरली पढ़ता है, इतना डेडिकेशन से, कैसे लगता है कि थोड़ा और बता दो, कुछ एक्स्ट्रा बता दो। कभी बाहर कुछ पता चलता है, वैसे आज अपनी क्लास में ये भी बता देती हूँ, उनको कुछ और एक्स्ट्रा बता दो। सो इसलिए क्योंकि आप लोग वैसे हो। अगर आप लोग का एटीट्यूड वैसा नहीं होता तो हम भी शायद सोचते चलो 5 मिनट पहले क्लास छोड़ देते हैं, कि लोग भी इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मतलब लिटरली ऐसे होता है कि चलो कल क्लास है, कल ये सब मिलने वाले इस बैच में, तो इन ये वाले स्टूडेंट की ये लेवल की बात है तो इनको ये बता दें।
थोड़े 1-2 वाले उनके लिए ये बता रहे। सो डेफिनेटली हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। एंड सुषमा जी के बारे में तो सभी ने बोला है, मैं उन्हें पर्सनली जब आरंभ से जुड़ी तब से ही जानती हूँ। सो डेफिनेटली बहुत शांत स्वभाव की और मेरे लिए तो बहुत ही स्वीट सी है, तो मुझे कभी डांटा नहीं। मतलब मुझे प्यार से भी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि ये करना है, वो समझता नहीं है। हाँ मतलब मुझे अभी तक समझा भी नहीं कि वो मुझे बिना बोले कुछ बोल रही है। मुझे ओरिएंटेशन में बहुत बार समझता है। So, बस मैं यही चाहूँगी कि सुषमा जी, you know, we celebrate 25th, 50th, 70th और 100 में हम रहे तो ठीक है, वो ना आगा में रहे एटलीस्ट 75 नहीं सोच सकते हैं 70 मेरा 25 उसके बाद वो उठा के लाना पड़ेगा ना। सो लेगेसी पास होती है इंस्टीट्यूट की और जस्ट आप लोग जुड़े रहिए और आप जहाँ जाएं इंस्टीट्यूट के साथ साथ अपना नाम रोशन करें and be a good teacher, and I know you all will be a good teacher because the way you all are वो आपके अंदर है, आप सीखना चाहते हो तभी आप अच्छे हो। So all the best to all the students for their future and आरंभ को तो हमेशा ही all the best होगा। So thank you and my speech everyone. Wow. I'm so glad and that I've got the stage to stand here. और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जैसे मेरी भी खुद की जर्नी है और सुषमा मैम के साथ में कुछ स्पेशल जर्नी है बिकॉज जैसे सोनाली मैम ने कहा कि वो गुस्सा करती हैं लेकिन पता नहीं चलता है बस वैसा ही कुछ है। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद आरंभ योगा एट 2018 आफ्टर माई स्पाइनल सर्जरी और सबसे पहला कोर्स आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था प्रीनेटल कोर्स के लिए। वो था 1.5 महीने का कोर्स, लेकिन फिर भी जैसे मैम ने कहा, सोनाली मैम ने, बीइंग क्यूरियस, आई वाज सुपर क्यूरियस स्टूडेंट एंड मैडम का पूरा दिमाग खा लिया था ये ऐसा क्यों है, ये कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने टाइम का होगा एंड ऑल दैट। एज बीइंग सेड, शी नेवर गेट्स एंग्री, दैट्स द ब्यूटी ऑफ हर एंड आई थिंक वी शुड ऑल लर्न दैट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम हर, नॉट टू बी एंग्री एंड बी इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड in all the situations, which is I believe very very difficult. And you know, second बोलना चाहूँगी, आरंभ इंस्टीट्यूट का नाम it's purely suits to each one of us who is sitting here. हर इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी है और उसे ये नाम बहुत सूट करता है। हम सभी यहाँ पे आज कनेक्ट हुए हैं, being a teacher और a student और नॉन योगा प्रैक्टिशनर। आरंभ में हम कहते हैं कि हम हमारे किस जर्नी से आए हैं, है ना, हम कौन सी जर्नी से आए हैं और हमें मैडम ने कौन सी जर्नी तक लेके जा रहे हैं, वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। सो आई केम हियर एज अ स्टूडेंट एंड दैट टू अ क्यूरियस एंड वेरी डिस्टर्ब काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वेयर आई डिडंट न्यू वेयर आई एम गोइंग टू बी। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ योगा टीचर बिकॉज आई नेवर इंक्लाइन टुवर्ड्स योगा। आई वाज इनटू जिम एंड बेनिफिट नाउ, but yes, it will definitely change your attitude and a perspective to look towards the life. What is your aim? You know, we all should have some purpose in our life, I believe. Purpose teaches you where to go, where are you right now. And this purpose, being a student and a yoga teacher right now, it teaches us how you can bring a smile on someone's face. And that job is being done by Sushma ma'am for all of us. So a big round of applause to her. और एक चीज़ मैम के बारे में ऐसा है कि जैसे हम सभी एज ए स्टूडेंट उन्हें परेशान करते हैं, वो परेशान होती नहीं हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। हम ऐसे आपस में भी डिस्कस करते हैं, मैम गुस्सा तो नहीं हो गए, पता ही नहीं चलता कि गुस्सा हो गए। सो आई ऑलवेज took her advice whenever I wanted to pursue any new course, whether it is diploma, whether it is masters. She never discourages us. She will tell you, as you know, सोनाली मैम सेड ना, वो खुद भी पढ़ती हैं और सबको मोटिवेट करती रहती हैं, आओ एग्जाम दो। आई नो एज ए स्टूडेंट हम सबको बहुत डर लगता है एग्जाम से। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केयर्ड एग्जाम्स? सब लोग दोनों हाथों से
एग्ज़ाम्स हाँ, बट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है एग्ज़ाम्स आपको ये चीज़ सिखाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, है ना। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो हम बहुत ही कैजुअल बिहेवियर के साथ शायद पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम होती है तो आपने जो पिछले 6 महीने में नहीं पढ़ा होता है ना वो सब क्वेश्चन पेपर में के हिसाब से हम पढ़ने जाते हैं, राइट। So talking about the institute, yes, this is one of the best institute if you talk about the knowledge, the quality and the quantity. And I'm sure you must be, trusting about the quality. 3 months course which you get outside, and here the course never ends. You are always encouraged to study, study and study. And I wish first of all Sushma ma'am, congratulate her for this foundation day completed successfully. And wish all the best to all the students. Those who are pursuing level 2, level 3, 4, and I would say journey of learning should never stop. Journey of curiosity should never stop. आप आज level 2 के एक छोटे से एम के साथ यहाँ पे आते हैं कि चलो, जैसे बाला सर ने कहा योगा करना नहीं था, दोस्त के साथ आ गए। वैसे मैंने भी दोस्ती में एमए कर लिया था, लेकिन पता नहीं था कि आगे जाके उसी में डूबने की इच्छा हो जाएगी। सो बीइंग क्यूरियस, बी क्यूरियस। सो आप जो लेवल 2 में हैं, लेवल 4 थेरेपी, जो भी आपका इंटरेस्ट है, अपने अपने कोर्सेज में अपनी अपनी जर्नी, अपना पर्पस डेफिनेटली फाइंड कीजिए। थैंक यू सो मच। May I request Nishita ma'am to come ahead and say a few words. For that, I am giving credit to Sushma ma'am. So I just came to know about Sushma ma'am through Surekha. I was not student of Arambha earlier, right? Earlier, very beginning. So that was my beginning in Arambha when Sushma ma'am told me to take lectures and all. And the best part of Sushma ma'am is कि सबने बताया जैसे. It is very difficult to explain again and again after many speakers are there. But Sushma ma'am still she is so calm and peaceful. कभी भी उनको चिल्लाते हुए देखा ही नहीं है. क्यों ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों हुआ? This is the art of speech. This is the art of speech, and that we should learn from Sushma ma'am and with Arvind sir also. They both are like that. कि इतना शांति से बात करेंगे कि आपको समझ में अरे कितना इजीली समझा दिया, कितना इजीली बोल दिया, एंड इतना इजीली आपको मोटिवेशन देते हैं हर चीज़ के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। शी एक्सप्लेन्स ऑल द थिंग कि कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाना है, एंड शी मोटिवेट्स कि चलो आपने एक लेक्चर दिया, अब इसके बाद में आप इफ यू आर कंफर्टेबल देन टेक अनदर लेक्चर। सो दिस इज अबाउट सुषमा मैम एंड आरंभ। I like this name Arambha very much. Arambha, beginning. So beginning of what? Beginning of so many things. Very first beginning of your studies in Arambha for yoga. So I have seen many students कि level 2 करने के लिए आते हैं या level 1 करने के लिए आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि yoga is all about asana and pranayama। आके एकदम अरे ये क्या है? ये इतनी philosophy, इतना सब structural knowledge, ऐसा कैसे? So then gradually they come to know about the culture and the ancient history and ancient heritage knowledge about yoga. Very strong knowledge about yoga. So you are so blessed. You are student of Arambha Yoga where we are having deep knowledge of yoga. Beyond asanas and pranayama, beyond so many scriptures are there that we are explaining in very detail, right? So in Arambha, as all said that कि सारे यूनिवर्सिटीज़ या सारे इंस्टीट्यूट्स में 2 महीने 3 महीने का कोर्स है, खत्म, एग्जाम खत्म एंड यू विल गेट सर्टिफिकेट। बट हियर द पैटर्न दैट इज ऑन रोटेशनल बेसिस, सो ईच स्टूडेंट विल हैव रिपीटेड कोर्स फॉर दैट, repeated studies for the same topic, so that person will have deeper knowledge of that. So that is the beauty of Arambha Yoga. I have never seen this pattern in any institute कि rotational basis पे कि students are coming in between। उनको initially थोड़ा problem होता है कि अरे एकदम से just they jumped into course, but after that when go with the flow then they come to know कि नहीं ठीक है अभी not comfortable। Many students say yes कि अरे कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा because they are coming from non-yoga background, so they don't have ABCD of yoga, which is the exact yoga or original yoga।
सो उनको एक शॉक लगता है कि अरे ये क्या है. So I just came here to learn the physical aspect of yoga और ये सब क्या है. So Arambha is beginning of the deeper knowledge. Arambha is beginning of your personality development. Arambha is beginning of your psychological development. Arambha is beginning of your spiritual development. So all the aspects are covered in Arambha Yoga. So that is about Arambha Yoga. And in context of student, if I'll say, students are amazing. So they keep on questions like that कि हमको भी दिमाग चलाना पड़ता है कि भी क्या इसका आंसर कैसे देना है, and how to explain them so that they will be so comfortable with the topic. Otherwise क्या होगा, उनको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा and they will get bored. So हमको भी ये चीज़ सीखनी पड़ती कि नहीं इतने inquisitive है students, so how to satisfy their inquiries. So that is very best part, and at the end I will say you are connected with a very good institute. So be connected with this institute because here so much freedom is there. As Sushma ma'am is like that, art of speech is there. So learn that art, and you will get freedom also to work here, and you will grow a more in this institute. Okay, thank you so much and congratulations. So first of all, ये जो आज का दिन है वो हम हमारे जो शाइनिंग स्टार्स हैं उनकी सक्सेस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर शाइनिंग स्टार्स फर्स्ट. एंड मैं भी पहले आपकी ही जगह पे थी कि एज ए स्टूडेंट मैम तो 2018 में मैंने लेवल 1 to फर्स्ट बैच से मैं उनके साथ हूँ. मेरा जो फर्स्ट मतलब 2018 से स्टूडेंट से लेके जो टीचर तक का सफ़र है वो सुषमा मैम के साथ है, हमारे आरंभ के साथ ही जुड़ा हुआ है. आज बहुत प्राउड फील होता है कि आज आरंभ इतना बड़ा हुआ है, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं. और बाकी तो एक्चुअली सबने बता दिया है तो और ज़्यादा तो कुछ बताऊँगी नहीं, लेकिन जो मतलब यहाँ पे आते हैं हम जो योगा जर्नी हमारी स्टार्ट की है हमने, तो मोस्टली तो अभी इतने सब फोकस्ड है. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताती हूँ कि कुछ एम के साथ आ जाइए, कुछ एम रखिए, एकदम फाइनल एम मत रखिए, छोटे छोटे गोल्स आप डिसाइड कीजिए, वो अचीव कीजिए. जैसे हम योगा में अगर बैक बेंडिंग है ना कि संपूर्ण नटराज आसन करना है तो डायरेक्टली हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम पहले फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे. बैक बेंडिंग आसन जो इजी वाले है, इजी टू एडवांस जाते हैं, वैसे ही पहले छोटे छोटे गोल्स आप सेट कीजिए, वो अचीव कीजिए. सक्सेस तो अपनी आप आने ही वाली है और आप आरंभ योगा से कनेक्टेड है तो पक्का ही आपकी मंजिल आपको मिलने ही वाली है. थैंक यू सुषमा. So we are going to listen some dohas of Kabir Das ji. We have been studying these dohas since our childhood. आज जो हम दोहे सुनेंगे वो अध्यात्म और गुरु के महात्म्य से संबंधित हैं और इसे हम सबके सामने पेश करेंगी मीनल श्रीवास्तव मैम. तो एक बार जोरदार तालियों से बट ये कुछ दोहे सिलेक्टेड हैं जो अध्यात्म और गुरु की महात्म्य से रिलेटेड हैं. ठीक है, मैं सेकेंड टाइम प्लीज रिपीट विद मी पॉसिबल. आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड म्यूजिक. सबे रसायन मैं किया प्रेम समान न कोई, रत्ते एक तन संचरे सब तन कंचन होय. सबे रसायन मैं किया प्रेम समान न कोई, रत्ते एक तन संचरे सब तन कंचन होय. सबे रसायन मैं किया माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर. सबे रसायन
आदि साकी कबीर की सब ग्रंथ का सार, सत्य नाम जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। आदि साकी कबीर की सब ग्रंथ का सार, सत्य नाम जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। सबे रसायन में किया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खो अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोर। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। सबे रसायन में किया गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब सन वह लोहा कंचन करे ये कर ले महन। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब सन वह लोहा कंचन करे ये कर ले महन। सबे रसायन में किया सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सबे रसायन में किया लास्ट वन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबे रसायन में किया। So
stage to felicitate our students from Yoga Level 1. पहले बैच को कभी नहीं भूल सकती। पूर्वा मैडम यहाँ पे हैं, वो हमारी सबसे पहली स्टूडेंट है जिन्होंने सबसे पहला फुल फी पे करके एडमिशन लिया था, है ना। उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ किया है कि मैडम ये मेरा फीस ले लो, कभी जाना नहीं सुना नहीं, है ना। फिर भी तो वी नेवर फॉरगेट हर। ऐसे ही जो पहली चीज़ें होती हैं उन सभी को, जैसे बालकृष्णा सर वॉज माई फर्स्ट सपोर्टर की जबकि सिखाने कौन आएगा, इससे क्यों क्या है बिल्कुल। और बाद में संजीव सर है, उन्होंने कहा कि मुझे ना आके कुछ सिखाना है, तो मुझे लगा थाने से वो कैसे ट्रैवल करेंगे, बट ही से आई विल मैनेज पर आइए। और वैसे ही सभी स्टूडेंट, तो मुझे आप जितने लोग हैं मैं हर एक को बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिविजुअली जानती हूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और ये जर्नी फिर बहुत प्री प्लान नहीं थी, बस ऐसे एक स्टार्ट हुआ और पहले ही बैच में 20 लोग आ गए और उसके बाद हमने सोचा था एक लंबा ब्रेक लेंगे, फिर जून में फिर से डिसाइड करेंगे कब करना है। लेकिन वो पहले और दूसरे बैच के बीच में कुछ गैप नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद तुरंत 10 लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमें कोर्स करना है, फिर 10-20 लोग आ गए कि हमें कोर्स करना है, और वो कभी ब्रेक ही नहीं हुआ साइकिल। फिर लॉकडाउन के बाद तो ऐसा हो गया कि हर महीने लोग आ रहे हैं, हर महीने जुड़ना है। तब वहाँ से जो गुरुकुल पद्धति का है ना, मेरे एक टीचर है, क्लासमेट थे, उन्होंने एक बार मुझे वो एक बताया कि जब गुरुकुल में जाते हैं तो कैसे, क्योंकि वो बहुत बार जाके आए थे, तो उन्होंने बताया था कि जब हम गुरुकुल में जाते हैं तो वहाँ पे टीचर क्या करते, जैसे योग सूत्र सिखाना चालू किया उन्होंने, और अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा ना फिर से वो सूत्र नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर नया स्टूडेंट आएगा तो सूत्र नंबर 1 से स्टार्ट। तो मैंने कहा ऐसे तो कभी बढ़ेंगे नहीं। बोले हाँ, जिसको सीखना है वो बैठेगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। तो ऐसे भी अरे पर ये तो है ना, उन्होंने कहा नहीं, जिसके वो एक ही सूत्र जिसने 10 बार सुना उसका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, जिसने पहली बार सुना उसका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा ना। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम ये रोटेशन में स्टार्ट करें, क्योंकि जब हमारे अंदर योगा करने की जो जिज्ञासा है जब वो उत्पन्न होती है रात को 12 बजे आती है वो, और हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं कल ही एनरोल करना है, हम स्टार्ट फाइंडिंग द क्लासेस, और हम मैसेज करते हैं कि हमें बस कल ही एडमिशन लेना है, क्योंकि अगर 2 दिन भी बीत जाएगा तो मोटिवेशन चला जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है। और उस बीच में फिर ऐसा होता है अगर हम बोलेंगे कि नहीं आप जून में आइए, अभी तो टर्म स्टार्ट हो गया है,
तो जिनमें तो खुद भी दिखाई नहीं देगा, उनको लगेगा मैं कुछ और करने लगी। तो वो सब जो डिफ़िकल्टीज थी या प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करते करते यहाँ तक हम लोग आए हैं कि बैच को रोटेशन में चलाना। और हर एक को सिर्फ मैं प्रॉमिस लेती हूँ कि 15 दिन आप हमें टाइम दीजिए, 15 दिन तक नहीं समझ आया तो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सभी लोगों को 15 दिन में बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो जब ये जैसे बताया बहुत प्री प्लान नहीं था, लोग आते गए जुड़ते गए। सोनाली मैम का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते आप सभी समझ सकते हो कि वो उनके पास ना अपने खुद के भी इतने सारे काम है, बट शी इज़ अ एक्सेलेंट स्टूडेंट। मतलब वो कॉलेज में भी थे तब ऐसा लगता था कि है ना, मैं उनको बोलती थी सोनाली मैम अगर डॉक्टर हो के आप यहाँ पे आ गए हैं ना तो हम लोग जैसे लोगों का क्या होगा। हम लोग तो है ना ऐसे आर्ट स्टूडेंट हैं जो आए हैं योगा में बहुत सालों से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक आए हैं। शी वाज लाइक एक्सेलेंट, मतलब वो जो लाइव टीचर की क्लासेस होती थी वो नोट्स को वैसे ही लिख लेते थे और हमें लगता था सोनाली मैम का एक बार नोट्स मिल जाए तो हम एक बार पढ़ लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है ना तो उनके हर क्लास को हम रिकॉर्डिंग की तरह ही लेते थे। इवन है ना संजीव सर को भी लगता था कि शी इज देयर तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और मुझे ऐसे ही लगता था, बट शी इज सो नाइस। और उन्होंने है ना खुद प्रेगनेंसी योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए जब उन्होंने हामी भरी तब मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उनका इंटेंशन भी ऐसा था कि योग में इतने सारे लोग आते हैं और प्रेगनेंसी योगा जो कुछ गलत लोग भी सिखा रहे हैं तो क्यों ना एक सही इंसान सिखाए और सही तरीके से बताए, है ना। तो वो उनका बहुत ही अच्छा थॉट था। और जो लोग आते हैं वो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जाते हैं जब वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी उनसे अच्छा कौन सिखा सकता है, लेकिन उनका वो हमेशा बताती थी कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए रोज़ की बात है। आपके लिए ऐसा होगा कि अरे पहली बार सुना, उनके लिए रोज़ की बात है। तो अगर कुछ लोग को ऐसा लगता होगा उनकी बात समझ नहीं आ रही है तो आप में प्रॉब्लम है, आपको पढ़ के आना चाहिए क्लास में उनके। और बालकृष्णा सर ना उनका टीचिंग मेथड अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा, जब हाँ बस वो क्लास में आने चाहिए, उनको पकड़ना तो मुश्किल होता है तो वो क्लास में आने चाहिए, अदरवाइज वी विल मेक योर डे है ना वेरी ब्यूटीफुल। और रीता मैम शी इज सो हार्ड वर्किंग एंड सो पर्टिकुलर। और मुझे ऐसा है कि अगर है ना मुझे कुछ काम सच में पूरा कंप्लीट करवाना है तो आई जस्ट मुझे दूसरा थॉट नहीं आता कि रीता मैम को दे दो, डेफिनेटली शी विल मेक। और बाकी सब मैं अरुण जी और प्रतिभा जी है ना उन सब से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि वो किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं। प्रतिभा जी फुल टाइम वर्किंग में, लेकिन फिर भी पूरा कोर्स कंप्लीट करना, क्लास कंप्लीट करना और यहाँ पे आके है ना मंच को भी संभालना। थैंक यू प्रतिभा जी। और जिनकी हम लोग बात कर रहे थे अभी संजीव सर यहाँ पे नहीं है, बट ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर इंस्टीट्यूट। और संजीव सर का जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है उन सभी लोगों को पता है कि संजीव सर ना सुपर एक्सेलेंट टीचर होते हैं ना सुपर टीचर होते हैं, उस तरह से है वो। और एक बार तो आपको उनको जरूर सुनना ही चाहिए संजीव सर को, और वो भी हमेशा मोटिवेट करते हैं। आज भी उनको ऐसे ही था कि जब मैंने उनको मैसेज किया था तो उनको था कि वी वुड लव टू कम, अभी वो आए नहीं हैं, मे बी अंदर में या सोनाली मैम बताएंगे कि वो कब आएंगे। हाँ ठीक है, आप मैसेज कर दो। हम सभी उनको मिस कर रहे हैं सर को। और एक ऐसे इंसान है विष्णु सर जिनके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि वो सबसे पहले तो वो इतनी दूर से आए हैं, उसके लिए सभी लोग प्लीज ऑनलाइन तो हम सभी उनको देखते हैं, हर एक कोर्स में, हर एक क्लास में, हर एक एक्टिविटी में उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता ही है। और इसीलिए हम उनको यहाँ पे आज अप्रिशिएट करने के लिए बुलाना चाहेंगे। विष्णु सर प्लीज़ आइए। एंड आपकी जो आरंभ योगा में जो योगदान है ना वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ से रहते हुए इंडिया को संभालना और जिन लोगों ने उनके लिए काम किया है, उनके साथ काम किया, उन सबको पता है कि वो पेशेंटली उनका एक ही रहता है कि हर एक्टिविटी में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच विष्णु सर। एक्चुअली इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, बट द वे आई मीन ओके दिस इज जस्ट प्रॉब्ली अ मोमेंटो। आई एम अटैच्ड टू अरुंगा योगा इंस्टीट्यूट not by design but by default. You know what happened? I happened to
enrolled for my yoga master, and that's first time I met. I spoke with Arvind sir, and the way he explained about the activities. Normally, when you talk to any salesperson, no, he gives a sales talk. But Arvind sir, when he spoke with me, I did not feel any sales talk. ऐसा वो कुछ सेल करने जैसा नहीं. सब कुछ बताने के बाद पहले अगर कुछ आपको चाहिए तो आप सुषमा मैम से बात कर सकते हैं. मतलब नहीं, I'm quite happy with what you said, and that's how I've connected. Explains or she takes the practicals. It's very difficult to forget. Oh no, I'm putting it other way around. जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना उनके, वो बहुत परफेक्ट रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू. इवन सूर्य नमस्कार का जब बात करते हैं तो द वे शी एक्सप्लेन हाउ यू बेंड फॉरवर्ड, उसी पोजीशन में कितना देर रुक करके ये करना है, मैं अभी नहीं भूल सकता. दैट्स हाउ. सिमिलरली विपरीत करने का जो रहता है उसी टाइम भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. बट टुडे thanks to her, because of that I can hold her for about 30 seconds to a minute, and I practice every day, and I would like to thank you ma'am for all that. Yoga Institute, more importantly, I remember, because most of the time people teach and for the sake of teaching. Here it's not a teaching, it's a, they make you not a pariksharthi, they make you vidyarthi. Most of the time when you earn the knowledge, it remains with you forever. And as most of the Balakrishna sir, Sonali ma'am, and Durvesh sir, I remember when we talked about Patanjali Yoga Sutra, I still remember, ये शोले का picture है sir, Samadhi path is just flash. I still remember, and how true it is. And the Sukshma Vyayam, what he takes it's amazing. Everybody here teaches from the bottom of heart, not for the sake of telling what is written in the notes, but what they have experienced, what they have learned, and what is that it will take you for a long time. That's how it is explained, and it makes me very happy to be connected, and I wish all the very best. Thank you. सर, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार आपका. और मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप सब आज यहाँ पे आए हैं और इतने अच्छे स्माइलिंग फेसेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है. और आप सब भी एक दूसरे से मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं. और साल में एक बार होना भी चाहिए. ऑनलाइन करते करते ना उसमें ऑफलाइन आना, एक दूसरे से मिलना, मुझे लगता है कि साल या 6 महीने में भी एक बार हो जाए तो वो एनर्जी, पता है मुझे पर्सनली व्हेन आई स्पेंड दिस डे, 2 दिन तक तो ना उसी जोन में हम लोग रहते हैं. सभी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि अभी तक वो जोन में ही है ना, अभी तक उससे बाहर नहीं निकले. तो ये वो एनर्जी है जो हम सभी को एक दूसरे से मिलती है. तो यहाँ तक आने की जो जर्नी, जो आरंभ नाम भी पड़ा है, उसके लिए बहुत कुछ सोचा समझा नहीं था. बहुत सारे नाम ढूंढ रहे थे, लेकिन हठ योगा में अपना जो घट अवस्थाएँ हैं ना, आरंभ, परिचय, निष्पत्ति और घट, तो वहाँ से मुझे लगा कि बाकी सब ने तो अष्टांग योग तो ले लिया है, तो अब आरंभ, ये हठ योगा से जो आरंभ है, आरंभ अवस्था, वो नाम वहीं से आया है, आरंभ योगा. इसके लिए बहुत कुछ डिज़ाइन नहीं था, बस स्वात्माराम जी से ना ये लिया गया. और आरंभ योगा की जो जर्नी यहाँ तक आई है, वो है ना, सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैम की वजह से, पर जो लोग मुझे पहले से बिगनिंग से जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि है ना, मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ ये देखने के लिए कि आप जिस जर्नी पे आए. और मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ उतना ही है कि क्योंकि आपसे पहले मैंने कुछ चीज़ें सीख ली, सिर्फ आपको वो गाइड कर रही हूँ. मेरा योगदान उतना ही है, लेकिन यहाँ तक आना, क्योंकि आप किसी को भी बाई फोर्स यहाँ पे नहीं लाए गए. जैसे हम जब जुड़ते हैं तो मेरा फर्म बिलीव है कि जब आपसे कोई जुड़ता है तो ज़रूर वो प्री डिफाइंड होता है ना, पहले से डिसाइडेड होता है वो, तभी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं. और अगर ऐसा है कि जो नहीं जुड़ने वाले हैं, कितना भी हो जाए उनसे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जिनसे जुड़ने का भाव है या जिनके साथ है, उनके साथ आप जुड़ के ही रहेंगे. और जब आपके साथ कोई जुड़ता है तो मतलब आप भी यहाँ पे, हम सभी एक भी फिलॉसफी में जाते हैं तो एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं ना, कि अपना रोल कितना बेस्ट तरीके से आप प्ले करते हो. आपको एक स्टेज मिलता है और आप है ना एज ए उस अवतार में, क्योंकि आप सभी ने अवतार ही लिया है ना, ये अवतार ही है,
तो इस अवतार में अपने उस कर्म को, अपने उस रोल को कितना बेस्ट प्ले करके जा रहे हो कि जो ऑडियंस है जब वो देखे तो उसको भी लगे, जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, उसको भी लगे वाह क्या प्ले किया, है ना, वो भी क्लैप करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे वो रोल प्ले करना है कि अपना जो मुझे रोल मिला है उसको बेस्ट प्ले करूँ, और आप सभी लोग अपना अपना बेस्ट ना योगदान दें योग में। और योग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इतना नोबल जो आपको भी फिट रखता है, दूसरों को भी फिट रखता है। और यहाँ पे जैसे 2 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, पराविद्या अपराविद्या, लोअर नॉलेज हायर नॉलेज। लोअर नॉलेज तो हम लोग हर जगह से गेन करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हायर नॉलेज मिलता है ना, जो आपको इस जन्म के बारे में नहीं, इस एक्टिविटी के बारे में नहीं, इस 1 साल के बारे में नहीं, आज के बारे में नहीं, बल्कि इसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में, या इसके पहले क्या हुआ था। तो आपको हर जन्म से जोड़ने वाला ये ज्ञान है, और इस ज्ञान को देने के लिए मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, या जो टीचर्स है वो सिर्फ एक माध्यम है। और वैसे भी जब आप एक टीचर बनते हो तब वो आगे का माध्यम आप बन जाते हो, और ये जर्नी चलती रहती है। तो जब मैं बहुत सालों बाद वापस पुनर्जन्म लूँ तब ये जो नॉलेज है फिर से मुझे आसानी से मिल जाए, उसका ही एक प्रयास है ये। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अपील, और थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल स्पीच। योगांबर में कहानी आप सबकी है, जो आप सभी ने शेयर की है। अगर किसी की कहानी इसमें अगर सम्मिलित नहीं हुए, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, बट जितना हो सके हमने कोशिश की है कि हम आप सबकी कहानी इंक्लूड कर सके। आपकी सबकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। ऐसा लगता है कि बहुत पर्सनल है, कैसे बताए। तब सदगुरु ने लेट द मास्क कि शायद किसी को बताना होगा, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है ना कि मेरी जो जर्नी थी वो शायद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत उसमें नेगेटिविटी बनी थी ना, इस तरह से। लेकिन जब वो उससे बाहर निकल आते तब उनको लगता है कि शायद वो मेरा जो पास्ट था इतना इंस्पायरिंग नहीं था, पर शायद वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि वहाँ से यहाँ तक की जो उनकी जर्नी हुई है, अगर सिर्फ उनकी बात को कोई सुन भी लेना उस दिन के लिए, तो उसको इतना इंस्पिरेशन आ जाता है कि मुझे भी ये करना ही है। यहाँ पे सभी लोग 100% इस बात से एग्री होंगे कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर हुए थे और आपको लगा कि नहीं मुझे भी करना है। ऐसा लगता है कि बहुत पर्सनल है, कैसे बताए। तब सदगुरु ने लेट द मास्क कि शायद किसी को बताना होगा, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है ना कि मेरी जो जर्नी थी वो शायद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत उसमें नेगेटिविटी बनी थी ना, इस तरह से। लेकिन जब वो उससे बाहर निकल आते तब उनको लगता है कि शायद वो मेरा जो पास्ट था इतना इंस्पायरिंग नहीं था, पर शायद वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि वहाँ से यहाँ तक की जो उनकी जर्नी हुई है, अगर सिर्फ उनकी बात को कोई सुन भी लेना उस दिन के लिए, तो उसको इतना इंस्पिरेशन आ जाता है कि मुझे भी ये करना ही है। यहाँ पे सभी लोग 100% इस बात से एग्री होंगे कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से इंस्पायर हुए थे और आपको लगा कि नहीं मुझे भी करना है। मतलब हर एक की सच में इंडिविजुअल जर्नी बहुत ही खास है। हम ऐसे ही ना सभी की जर्नी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उस जर्नी को हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है आपके ही शब्दों में। जैसे अपने अपनी कहानी बताई है, उसको मैं बहुत एडिट नहीं किया, क्योंकि लगा कि आपने जो भेजा है अगर उसी भाव से रखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपने जैसा भेजा है उसको वैसे ही रखा है, और मुझे लगता है कि आप जो भी इसे पढ़ेंगे ना आपकी जर्नी को, वो पता नहीं कितने सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। जो भी पढ़ेगा वो बिना इंस्पायर में रहेगा नहीं। तो आप सभी भी इसे जरूर पढ़िए, इसलिए नहीं कि मैं कुछ प्रमोट करूँ, पर सच में इसमें ना जो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतने सारे इंडिविजुअल हैं, सिर्फ दुख आपको ही नहीं है। जो सांख्य दर्शन में या योग दर्शन में बताया है या बुद्धिज्म में जो बताया है कि है ना पूरा जीवन दुख ही दुख है, तो सिर्फ अकेले दुख आपको नहीं है, यहाँ पे सभी को वो दुख है। लेकिन उस दुख से बाहर आने की जो जर्नी है लोगों ने कैसे कंप्लीट की, आप ही कर सकते हो ना।
तो आपने तो ऑलरेडी कर लिया है, अब आप दूसरों को बताइए कि आपने कैसे किया है। तो ये उसका एक शुभारंभ है योगा का। आभार व्यक्त करती हूँ और इसे यहाँ तक लाने का पूरा श्रेय डेफिनेटली टीम को जाता है। अरविंद सर है, हरिता मैम है, और विष्णु सर है, और उनके साथ रेणु मैडम ने बहुत ज़्यादा एडिटिंग का काम किया है, और प्रतिभा जी, अनु जी, रात दिन, मतलब सच में रात दिन हो गए इसमें करने में। थैंक यू। हाँ, टाइम बहुत कम था और चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और सभी चीज़ों को रखना था। ऐसा लगा कि किसी को कट किया जाए, शॉर्ट किया जाए, पर फिर फाइनली ऐसा नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही रखते हैं। लेट्स गो। आप सभी के सामने सभी लोग अपनी अपनी कॉपी भी ले लेंगे एक एक, और आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी सुन एज अवर ऑफिस विल स्टार्ट। तो हर साल के लिए हम रखेंगे, तो हर साल आपका भी कंट्रीब्यूशन कीजिए और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एडिटिंग के लिए या फिर स्टोरी लिखने के लिए, आपकी कहानी बताने के लिए। यू ऑल आर वेलकम। और आरंभ में सबसे अच्छा कल्चर यही है कि जो आगे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो आगे कर सकता है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई किसी एक का फेवरेट नहीं है, जो काम कर रहा है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए और आप जिस लायक भी या जो भी हमसे या आरंभ से सपोर्ट होगा डेफिनेटली डू इट। और आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में, है ना, जो एलुमनाई कमेटी बनेगी उसमें, ताकि हमारे जो एलुमनाई के मेंबर्स हैं या जो आरंभ से पास आउट होकर बाहर जा रहे हैं, फिर उन सबको जोड़े रखना और उनकी जर्नी आगे क्या कर रहे हैं, वो सभी के पास आगे की भी एक जर्नी है, स्टोरी है जो अभी के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसमें इन्वाइटेड हैं और इसका पार्ट है, तो जरूर